Today we are going to start a new chapter and that is called inequality. Inequality का मतलब क्या होता है? First what we have done is we have done equations. Equations क्या होते थे? जहाँ पे numbers were actually equal. Numbers अगर equal हैं, expressions equal हैं, तो we call them equations. और if they are not equal, then we call them inequation. अब नॉट इक्वल अगर होंगे तो क्या होगा? या तो ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, देयर मे बी लेस देन ऑब्लिक ग्रेटर देन ऑल्सो. सो एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट इफ नॉट एग्जैक्टली इक्वल. सो इक्वल को छोड़ करके बाकी जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा लेस देन का, ग्रेटर देन का, इक्वल टू का, दैट इज बेसिकली कॉल्ड इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज इनइक्वेशन. अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं दैट वी विल बी टेकिंग इन दिस चैप्टर. तो इनइक्वालिटी में फर्स्ट वी स्टार्ट विद वेरी सिंपल इनइक्वालिटी एंड लेट्स टेक इट एज 2x plus 3 is less than 5. तो suppose if I say कि you have to solve this inequality, this is very simple. You will say कि 2x is less than 5 minus 3, that is 2. Now if we divide both the sides by 2, I will get x is less than 1. And that is perfectly alright. We can also write this solution as x belongs to minus infinity to 1, that is open interval. You must know this. Another form we can represent this is number line. Number line pe what we can say कि this is a number. All these numbers which are from 1 to minus infinity, in which 1 is not included, तो एक सिंगल सर्कल बनाते हैं, और अगर 1 इंक्लूड होता है तो एक सॉलिड सर्कल बनाते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, आई विल से 2x plus 3 equal is greater than equal to 5x minus 7. एक तो मैंने क्या किया, I have created x on both the sides and then used greater than के साथ साथ equal to का भी साइन यूज किया. So now I am going to solve and you have to find a mistake that I am going to make. So this 2x minus 5x will give you minus 3x greater than equals to minus 7 minus 3 will be minus 10. Now if I divide it by minus 3, I will get x is greater than equals to minus 10 by minus 3, that is 10 by 3. Did you find the mistake? Actually there is a mistake which is in this there. तो मिस्टेक अगर आपको पता चल गई हो तो that is okay, else I'll tell you. Whenever we divide any inequality, any inequation by negative number, either we divide by negative number or we multiply by negative number, in both the cases inequality का sign will change. So I will say if I divide it by minus 3, then greater than equal to will become less than equal to, or minus 10 by minus 3 will be 10 by 3. तो मोस्ट ऑफ यू नो दिस थिंग कि वेन एवर इनइक्वलिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है. नाउ व्हाट अदर केसेस यू नो, व्हेन अदर केसेस में जब इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है. सो सम ऑफ यू मे नो कि जब नंबर्स का रेसिप्रोकल करते हैं तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है. नॉट एग्जैक्टली, समटाइम्स इट रिमेन सेम, समटाइम्स इट मे चेंज. What other cases? तो there would be infinite cases जहां पे inequality का साइन सेम होगा and same inequality का साइन चेंज भी होगा. So how do we decide कि कोई नंबर में, कोई inequality में साइन चेंज होगा या नहीं होगा? So the only idea behind this is if a function is decreasing in that interval, then inequality का sign will change. If a function is increasing in that interval, strictly increasing I'll say, then inequality का sign will not change. Now this increasing decreasing we will do in the other chapter, that is called application of derivatives. But currently you know some standard functions, and as the time will go by I will keep on telling you कि in this kind of function see this is decreasing, so sign of inequality is changing.
See, in this function, it is increasing, to sign of inequality will not change. So that will be a long process. We will keep on doing this as it will come to us. Now let us take one more example. Suppose you have 2x square plus 3x minus 5 is less than 0. Now if I ask you to solve, what people do is कि let's find out value of x. Value of x क्या हो जाएगा? मुझे तो डायरेक्टली पता है कि इसका वैल्यू होगा 1 and minus 5/2. Any idea how do I get this roots so fast? It's not that I'm a teacher, so I know it. It is that simple कि even you will be able to understand. So you can find it in the other video, that is quadratic equation का first video. So this will be there. So people say कि x का वैल्यू निकाला कैसे? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. दैट विल गिव यू माइनस 3 प्लस माइनस 49 का रूट 7/4. दैट कम्स आउट टू बी 1 and minus 5/2. So people say कि x is less than 1 and minus 5/2, which is again wrong. So what is the correct way? The correct way is to first factorize this. अगर factors बनाएंगे तो again quadratic equation का concept है, or you can say कि factor theorem. We know that if alpha is a root, then x minus alpha is a factor. तो यहाँ 1 अगर रूट है तो x minus 1 एक फैक्टर होगा. माइनस 5/2 भी एक रूट है तो x प्लस 5/2 भी एक फैक्टर होगा. बट दैट्स नॉट ऑल. वी हैव टू राइट दिस 2 दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, वो भी यहाँ पे आएगा. अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी हैव दिस लेस दैन 0. नाउ वी सी दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज लेस दैन 0. अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, सो या तो फर्स्ट नंबर नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, या फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव. दीज आर द टू केसेस. तो चलो वो दो केसेस बना करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ सपोज देयर आर 3 फैक्टर्स, 4 फैक्टर, 10 फैक्टर, 1000 फैक्टर्स, देन व्हाट वी विल डू? इन दोज केसेस we have to find some alternative way to find this inequality ka solution, and for that we have this wavy curve method. We have wavy curve method. So first let me tell you about the common system to solve any kind of inequality. Every inequality is solved by one common rule, and step 1 is to draw द बाउंड्रीज. सबसे पहला स्टेप होता है बाउंड्रीज बनाने का. बाउंड्रीज कैसे बनाते? बाउंड्रीज बनाने के लिए इनइक्वालिटी को इक्वल मान लेते हैं, और आई विल से कि एवरी इंडिविजुअल फैक्टर विल बी इक्वेटेड टू 0. अब वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो. तो इफ आई से कि दिस इनइक्वेशन इज एक्चुअली इक्वल, देन वी गेट व्हाट? बाउंड्री. एक और तरीके से समझाता हूं. बाउंड्री, इफ यू नो सिंपल बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री वॉल्स होती है हमारे घर में. तो हमारे घर में बाउंड्री वॉल्स है, या आपकी क्लासेस में इफ यू सी कि देयर आर सो मेनी क्लासेस साइड बाय साइड एंड दे हैव अ बाउंड्री वॉल. सपोज यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको पता करना है आप क्लास में गए कि आपको कौन सी क्लास में बैठना है. सो व्हाट यू डू? You see the boundaries and then you go to each and every class and find out whether your batchmates are there or not. So if there is your batchmate, that means it is your class. If it is not your batchmate, then it is not your class. So same thing we are doing here, but before that वो बाउंड्री का आइडिया करते हैं. एक आपकी क्लास होगी और एक नेबर की क्लास होगी, नेबरिंग क्लास. जो बाउंड्री वॉल है वो किसका हुआ? वो आपका हुआ या नेबर का हुआ? Same at your hometown also, at your home also, at your house there will be your house, बाजू में नेबर का हाउस, बीच में होता है बाउंड्री वॉल. बाउंड्री वॉल पे किसका राइट होता है, आपका या नेबर का? तो एक्चुअली both have equal rights on this boundary, and so we use that equal rights as equality. So if I say कि ये जो इनइक्वेशन दिया हुआ है लेस देन 0, if I take it as equal, अगर मैं उसको इक्वल बोलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा?
So I will get two roots. First one is 1 and second is minus 5 by 2. So I will draw the number line. Number line क्यों draw किया? Because this is single variable concept. Single एक x variable है, तो this is one dimensional concept. So I have drawn one line only. यही अगर x और y में होता तो मैं एक x axis बनाता और एक y axis बनाता. यहाँ पे we will draw minus 5 by 2 and 1 are the two boundaries जहां पे इक्वालिटी है. So हमने बाउंड्री वॉल्स बना लिए. नाउ वी विल गो टू ईच एंड एवरी क्लास एंड सी वेदर यू हैव योर क्लासमेट्स ओवर देयर और नॉट. Now what we will do, we will go to first classroom, pick any student there, means pick any number which lies in this interval 1 to infinity. I will say let's pick up 2. अब ये 2 पुट करने पे ये पूरा नंबर क्या मिलेगा? 2 minus 1 will be a positive number. All we are worried about is sign of factor. It is positive or negative. Because one thing I forgot to tell you, this method में we are going to write right side equal to 0 only. जो कुछ भी एक्सप्रेशन है सबको लेफ्ट ले आने का, राइट साइड में 0 ही होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट कि राइट साइड में 0 ही होगा और लेफ्ट साइड में जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फाइंड कर लो. तो इफ आई टेक 2 देन 2 minus 1 is positive and the second expression x plus 5 by 2, that will again be positive because 2 plus 5 by 2 is positive. Now we come to second one, second interval. This is minus 5 by 2 to 1. Take any number in between this. I will go for 0. To 0 minus 1 is a negative number and 0 plus 5 by 2 is positive. Now I will go to third interval, which is minus infinity to minus 5 by 2. You can take any number into that. I will take minus 10. To minus 10 minus 1 is negative minus 11. And minus 10 plus 5 by 2 is again negative. So this is the part where we take any number in those three intervals one by one and check the sign of every factor. हर factor का sign check करोगे वो positive है या negative है. And write those. Now see, first interval में plus into plus अगर multiply करोगे तो finally we get plus. In mid interval, if you see 1 is negative, 1 is positive, multiply करेंगे तो we'll get negative. In last interval, both are negative, multiplying them will give you positive. Now let me remove this individual sign. So what we have now is keep plus, minus and plus. Now what do we need? हमें क्या चाहिए? If you see closely, what do we need is positive या negative? So we need less than 0. Less than 0 is what? Less than 0 means negative number. अब negative number का क्या करेंगे? Negative कहाँ पे है? To see in this interval minus 5 by 2 to 1, this number is negative and we needed negative only. So I can say कि x belongs to minus 5 by 2 to 1 would be the correct answer. Means if you take any number between minus 5 by 2 and 1, ये जो expression है अपना ये negative ही होगा. So that is how we are going to solve a lot many questions and we call this method wavy curve method. अब wavy curve क्यों बोलते हैं? Let me tell you that also. Some people what do कि positive अगर है तो they draw ऊपर, positive में ऊपर और negative में they draw this downside. What you see is something like a wave. So we call them wavy curve method. But what I prefer is कि हमें जो required है उसी को plot करने का. And we need negative, so we mark the negative part only. So we won't get confused and we get the answer. Now I am going to solve another question. Let us take another question. X minus 1 into x minus 3 into x plus y greater than 0. Now what do I get? तो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि RHS should be equal to 0, that is for sure, तो ऑलरेडी है. सेकंड कंडीशन है नंबर लाइन बनाने का.
और नंबर लाइन पे उसके रूट्स मार्क करने का। रूट्स के साथ साथ हम पोल्स भी ड्रॉ करते हैं। नाउ व्हाट इज रूट, व्हाट इज पोल? रूट का मतलब होता है, रूट इज ऑल्सो कॉल्ड इन दिस केस मोर एप्टली वी कॉल जीरोस। जीरोस का मतलब होता है ऐसा x का वैल्यू फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज बेसिकली इक्वालिटी। तो अगर इक्वालिटी ले रहे हो, इक्वेशन ले रहे हो तो रूट बोलोगे, एक्सप्रेशन ले रहे हो तो उसको जीरोस बोलेंगे। एंड व्हाट अबाउट पोल्स? पोल्स वो होंगे जहां पे एक्सप्रेशन का वैल्यू इंफिनिटी होगा, मतलब डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू जीरो। So first we will find roots or zeros of this equation. So if you see x minus 1 को 0 करोगे, every individual factor should be equated to 0. So we will get 1. x minus 3 को 0 किया तो that will give you 3. x plus 5 को 0 किया तो that will give you minus 5. One thing you have to remember, ये numbers जो number line पे draw करेंगे वो order में होने चाहिए। क्वेश्चन के ऑर्डर में नहीं, नंबर के ऑर्डर में। -5 सबसे पहले होता है तो सबसे पहले होगा, भले एक्सप्रेशन में किसी भी नंबर पे आया। एंड नाउ द सेम कॉन्सेप्ट, हर इंडिविजुअल इंटरवल में जा करके कोई नंबर पिक करेंगे एंड वी चेक द साइन। सो इन द लास्ट इंटरवल और फर्स्ट इंटरवल यू कैन से आफ्टर 3 विल पिक 4 और 5 और 6 और 7 और 1000 और 2079.1 और यू कैन पिक पाई ऑल्सो। 3 से ज्यादा ही होता है तो पाई भी पिक कर सकते हैं, बट वी प्रेफर सिंपल नंबर, लेट्स टेक इट 4. तो 4 minus 1 is positive, 4 minus 3 is also positive, and 4 plus 5 is also positive. All three are positive. Then we pick a number from 1 to 3. 1 से 3 में क्या नंबर पिक करें? Let's take it 2. 2 minus 1 positive, 2 minus 3 negative, -1 आएगा, and 2 plus 5 7 positive. -5 से 1 में चेक करते हैं। -5 से 1 में 0 ले लो, एक नंबर तो 0 बनता है। कोई भी इंटरवल दिखता है जहां एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो 0 ले लेने का। अब बाउंड्री 0 है तो बात अलग है। तो 0 minus 1 नेगेटिव, 0 minus 3 नेगेटिव, 0 plus 5 पॉजिटिव। दैट्स इट। नो, -5 के पहले भी देखना पड़ेगा। -5 के पहले -6 ले लेते हैं। -6 minus 1 -7 negative, -6 minus 3 -9 negative, -6 plus 5 -1 negative. So these are the individual signs. Now what would be the final sign? The final sign here will be plus, here will be minus, here will be plus, here will be minus. Take your time and think about it. Now what we need actually? We need greater than 0 and means we need positive. तो पॉजिटिव कहाँ पे है? इफ यू सी, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। सो आई विल से कि x बिलोंग्स टू -5 to 1 यूनियन 3 to infinity। यूनियन का मतलब आपको अगर पता हो, सेट्स में यूज करते हैं, एल्स इट इज सिंबल फॉर और, इधर दिस और दैट और बोथ। सो इधर दिस और दैट में वी यूज यूनियन साइन। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इसको देखिए, मैं लिखता हूं। x² -1 इंटू 2x -30 इज लेस देन 0. ओके, सो नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक है तो इफ वी कैन वी विल डिवाइड इनटू द फैक्टर्स, if not then we will not. But in this case what you see, we can easily divide it into 2 parts और यहाँ से 2 कॉमन भी ले लो तो x minus 15 आ जाएगा। Exactly same question as previous, so I'll do it faster. The roots are 1, 15, -1. साइन लगाओगे तो 16 पिक किया तो प्लस प्लस प्लस, 10 पिक किया तो प्लस प्लस माइनस, 0 पिक किया तो माइनस प्लस माइनस और -2 पिक किया तो माइनस माइनस माइनस। फाइनली व्हाट वी गेट इज प्लस माइनस प्लस माइनस। डोंट गेट यूज टू दिस कि हर जगह प्लस माइनस ही आता है। दिस इज जस्ट सिंपल क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग। नो, वी नीड लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, सो आंसर इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो आई विल से कि x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to 50. Simple. Let's go to another question. 2x square minus 3x plus 7, 7 नहीं 1 कर लेते हैं, and x square plus x plus 1 greater than 0. Now we have two quadratics. What do I do? Simple. एक साइड 0 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है. लेफ्ट साइड में फैक्टर्स होने चाहिए, ऑलरेडी हैं. इफ वी कैन फर्दर डिवाइड इट वी कैन. सो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स आएंगे 1 and 1/2. यू कैन यूज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आई विल से कि दिस इज बेसिकली x minus 1 x minus half इंटू 2. ये 2 के बारे में मैंने बोला था, इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी, तो उसका हमें जरूरत पड़ेगा, तो वी विल यूज दैट. और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका तो कोई रूट ही नहीं है. रूट के अंदर जब डी मेथड यूज करते हैं तो रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव नंबर आता है, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी. अब अगर इमेजिनरी रूट आ जाए तो क्या करेंगे, दैट इज वन क्वेश्चन. सो आई विल मार्क इट एज स्टार कि दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट वी आर लर्निंग. तो अगर रूट्स इमेजिनरी आते हैं तो आने दो, हमने तो रियल नंबर लाइन बनाया है, तो हम सिर्फ रियल नंबर्स ही प्लॉट करेंगे. सो लेट्स सी. वन रूट इज 1, अदर इज 1/2. नाउ सेकेंड इक्वेशन का कोई रूट नहीं है, सेकेंड का रूट नहीं है तो उसके रूट्स नहीं प्लॉट करेंगे, बट प्लस माइनस में ही इट विल पार्टिसिपेट. बट अगर किसी फैक्टर का कोई एक्सप्रेशन का रूट नहीं आता है तो यूजुअली आप लोग दुखी हो जाते हैं कि अरे अब क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं करना है. इट इज बेसिकली गुड थिंग कि वो एक्सप्रेशन का कोई रूट नहीं आया है. एक्सप्रेशन का रूट नहीं आने का मतलब हुआ इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि भाई वो एक्सप्रेशन या तो थ्रू आउट पॉजिटिव होगा या थ्रू आउट नेगेटिव होगा. तो किसी एक पॉइंट पे इसका वैल्यू देख लेते हैं. कौन सा पॉइंट पिक करें? लेट्स पिक 0. बेस्ट ऑप्शन 0 पिक करो. 0 पे क्या मिला, ये 0 पे आएगा 0 + 0 + 1 दैट इज 1, मतलब पॉजिटिव. इसका मतलब हर जगह ये तो पॉजिटिव ही होने वाला है. तो थर्ड वाले का साइन तो मैंने पहले लिख दिया. ओके, मतलब इट विल नॉट चेंज द साइन बिकॉज इसका कोई रूट नहीं आया है ना. 1 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, दैट इज 2. 2 - 1 इज 1, दैट इज पॉजिटिव. 2 - हाफ दैट इज 3/2, पॉजिटिव. हाफ से 1 के बीच में क्या लोगे? 0.5 से 1 है तो 0.6 ले लेते. 0.6 - 1 नेगेटिव, 0.6 - 0.5 नेगेटिव. ना 1/2 से छोटा 0 1 तो बनता है. 0 - 1 नेगेटिव, 0 - हाफ नेगेटिव. आप कोई भी नंबर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो पॉजिटिव ही आने वाला है. इफ यू वांट टू चेक यू कैन. नाउ फाइनली इफ यू सी तो साइन इज प्लस प्लस, there is some problem. I am taking number from half to 1 will be 0.6. 0.6 minus 1 is negative. 0.6 minus 0.5 is positive. यहाँ positive आएगा. So what we are getting is कि यहाँ पे negative and here we getting positive. फिर से प्लस माइनस प्लस आया. क्यों? सिंपल क्वेश्चन है. इट इज नॉट ऑलवेज द केस. आई विल टेक दोज केसेस. अब हमें चाहिए ग्रेटर दैन 0. ग्रेटर दैन 0 कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है. तो आई विल से x बिलोंग्स टू -∞ से 1/2 यूनियन 1 to infinity. तो वन थिंग न्यू विल लर्न इज कि अगर कोई एक्सप्रेशन का रूट नहीं आता है, इमेजिनरी आता है, इट इज अ गुड थिंग. एक तो हमें रूट्स मार्क नहीं करने पड़े और दूसरा उसका साइन भी चेक नहीं करना पड़ा हर जगह. बस एक बार चेक करना है. इट मे बी ऑलवेज पॉजिटिव और इट मे बी ऑलवेज नेगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नया प्रोफाइल लेट मी कवर. x - 1 का स्क्वायर x + 2 is less than 0. Now you can take a pause and you solve this question. I insist कि you पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट मिस्टेक्स यू आर गाइज आर एक्चुअली मेकिंग. सो आई एम स्टार्टिंग. फर्स्ट वाले से रूट निकालोगे 1 आएगा, सेकंड से रूट निकालोगे तो -2 आएगा.
अब 1 के बाद कोई नंबर पिक करते हैं, 1 के बाद नंबर पिक करेंगे तो वो 2 आएगा। 2 minus 1 is 1, that is positive, और स्क्वायर किया, स्क्वायर भी तो करना है, तो that will be positive. Now 2 plus 2 is 4, that is positive. -2 से 1 में कोई नंबर बताओ, -2 से 1 के बीच में we will take 0. 0 minus 1 is negative, लेकिन उसका स्क्वायर किया तो पॉजिटिव, एंड 0 plus 2 is also positive. Now -2 से छोटा कोई नंबर लोगे तो क्या होगा, -3. -3 minus 1 is -4, लेकिन स्क्वायर किया तो +16, और -3 plus 2 is negative. So final sign we are getting is plus, plus and minus. So what would be the answer? We need less than 0. तो less than 0 कहाँ पे है, -∞ से -2. देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का टर्म था. तो इट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट कि अगर किसी एक्सप्रेशन का पार इवन इंटीजर है तो उसका वैल्यू थ्रू आउट पॉजिटिव होता है, तो उसका साइन एक्चुअली में चेक नहीं करना जरूरी होता है. ये वाला जो प्लस साइन है ये हमने हर बार चेक करके लिखा है. हम डायरेक्टली भी प्लस लिख सकते थे कि ये तीनों में तो प्लस ही आएगा, बाकी का देख लेते हैं, बट मार्क करना जरूरी है. यू हैव टू मार्क 1, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम आएगा. सो मार्क करना पड़ेगा, साइन चेंज होगा नहीं होगा वो देखेंगे. लास्ट में आपको मेथड बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा. इफ यू फॉलो दोज रूल्स तो आपको हर इंटरवल में चेक करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर पहले समझ लोगे अच्छे से तो अच्छा रहेगा. तो दिस वाज द सेकंड कॉन्सेप्ट. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, तो साइन चेंज होने के चांसेस होते हैं और नहीं भी होते हैं. तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस नहीं आया, प्लस प्लस माइनस आया. अनदर एग्जाम्पल विद अनदर ट्विस्ट. x plus 1 into x minus 2 upon x is greater than 0. Now what? Again pause करो and solve it. What I am going to do is number line बनाते. राइट साइड में 0 है, वो तो प्री रिक्विजिट है, कंडीशन है, वो तो ऑलरेडी है. अब हर एक फैक्टर को 0 करोगे तो न्यूमरेटर से आएगा -1 and 2, और साथ में डिनोमिनेटर को भी 0 करना है. डिनोमिनेटर को 0 करने से क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 0, विच इज कॉल्ड पोल ऑफ द इक्वेशन. तो रिमेंबर, न्यूमरेटर 0 से जो आएगा दैट इज जीरोस, और रूट्स वी कॉल देम, और जो डिनोमिनेटर से आता है वी कॉल देम पोल्स. नाउ साइन वही कॉन्सेप्ट सिंपल. 2 से बड़ा कोई नंबर 3, 3 plus 1 पॉजिटिव. मैं काम करता हूं, इस बार इंडिविजुअल साइन नीचे लिखता हूं. 3 plus 1 पॉजिटिव, 3 minus 2 पॉजिटिव अपॉन 3 पॉजिटिव. 0 से 2 के बीच में कोई नंबर बताओ. लेट्स टेक 1. तो 1 plus 1 पॉजिटिव, 1 minus 2 नेगेटिव, एंड 1 इज पॉजिटिव. -1 से 0 में नंबर लेंगे -1/2, मतलब -0.5. -0.5 plus 1 will be positive. -0.5 minus 2 is negative, and -0.5 is negative. -1 के पहले क्या आएगा, -2 लेते हैं. -2 plus 1 नेगेटिव, -2 minus 2 नेगेटिव, एंड -2 नीचे. ओवरऑल साइन अगर आप देखोगे तो प्लस 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 विल गिव यू प्लस, प्लस माइनस प्लस विल बी माइनस, देन प्लस एंड देन माइनस. वापस प्लस माइनस आया. देखो सबका पार 1 1 1 1 है, तो प्लस माइनस आएगा. बट अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो प्लस से ही स्टार्ट होगा, माइनस से भी हो सकता है. सो वी नीड ग्रेटर दैन 0, सो आंसर विल बी दिस एंड दिस. तो वी कैन राइट -1 to 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी. Done. Next question. Next question, let me take nothing new, just simple. एक क्वेश्चन लेते हैं. x plus 1 into x minus 5 upon 3 minus x into x square plus 1 is less than 0. पॉज करो और सॉल्व करो. आई एम गोइंग टू सॉल्व. राइट साइड 0 है, दैट इज ओके. लेफ्ट साइड में देखना, x plus 1 से रूट निकालोगे तो -1 आएगा. x minus 5 से रूट निकालोगे तो 5 आएगा. 3 minus x से रूट निकालोगे तो 3 आएगा.
एक्स स्क्वायर प्लस 1 से रूट निकालोगे तो इमेजिनरी आएगा, मतलब इसका कोई रूट नहीं है, मतलब इट इज गुड थिंग। क्या कि इसका साइन चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका साइन क्या रहेगा, तो इसका साइन हमेशा जीरो पे चेक करो जरा, जीरो पे दिस कम्स आउट टू बी 1, मतलब पॉजिटिव, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस साइन बिकॉज इट इज प्लस एंड प्लस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो 5 के बाद कोई नंबर लेते हैं 6, 6 प्लस 1 इज पॉजिटिव, 6 माइनस 5 पॉजिटिव, 3 माइनस 6 नेगेटिव। नाउ 3 से 5 के बीच में 4, 4 प्लस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 5 नेगेटिव, 3 माइनस 4 नेगेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव है, लिखने की जरूरत नहीं है। -1 से 3 में 0 ले लो, 0 प्लस 1 0 माइनस 5 3 माइनस 0, -1 से छोटा -2, -2 प्लस 1 -2 माइनस 5 3 माइनस -2। फाइनली व्हाट डू आई गेट इज माइनस प्लस माइनस प्लस। सी यहाँ पे माइनस से स्टार्ट हुआ है, तो इट विल बी इधर प्लस से स्टार्ट हो सकता है, माइनस से स्टार्ट हो सकता है, साइन चेंज हो सकता है, साइन सेम रह सकता है। तो यूजिंग एनी रूल से अच्छा है कि हर इंटरवल में इंडिविजुअली चेक कर लो। एंड बिलीव मी, जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे उसमें लास्ट में मैं रूल बताऊंगा, यू विल बी एबल टू फाइंड द साइन विदाउट फाइंडिंग द इंडिविजुअल वैल्यू। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो चेक करना वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। सो ऑलवेज गो फॉर चेकिंग द वैल्यू। हमें लेस देन 0 चाहिए था, तो आंसर विल बी दिस। ओके, नेक्स्ट, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर लेस देन 0। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आई एम गोइंग टू डू इट फास्ट। x प्लस 1 है तो रूट विल बी -1, x माइनस 3 है तो दैट विल बी 3, x प्लस 5 है तो दैट विल बी -5, x है तो दैट विल बी 0, 3 माइनस x है तो अच्छा ये 3 और 3 ऊपर नीचे सेम हो गया, लेट्स मेक इट 4, 4 माइनस x है तो दैट विल बी 4। अब वो रूल बताने जा रहा हूँ मैं, जो कि आई विल आस्क यू टू अवॉइड, बट इफ यू वांट यू कैन यूज बिकॉज फास्ट होगा, बट बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही यूज करना। सबसे पहले 4 के बाद देखो ये रूट्स कौन से कितने बार आए हैं। तो ये जो x प्लस 1 है 1 सिंगल बार आया, -1। x माइनस 3 जो है स्क्वायर है तो 3 रिपीट हुआ है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम है। तो ऑड वाले को सर्कल करेंगे, इवन वाले को अंडरलाइन कर देंगे, या फिर ऐसा बोलो, लेट्स चेंज, ऑड वाले को अंडरलाइन करेंगे, इवन वाले जो रूट्स हैं ना उनको ओके इवन वाले रूट्स को सर्कल कर देते हैं। देन x प्लस 5 में -5 सिंगल आएगा, x में 0 सिंगल आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर में 4 डबल बार आएगा। तो जो रूट्स 2 बार आते हैं उनको सर्कल कर देने का, जो 4 बार आते हैं सर्कल करने का, 6 बार इवन वाले को सर्कल करने का, ऑड वाले को अंडरलाइन करने का। नाउ द रूल 1 इज कि जहां जहां पे ऑड नंबर ऑफ रूट्स हैं वहीं साइन चेंज होगा, बाकी जगह साइन चेंज नहीं होगा। बट स्टार्ट कैसे होगा, फॉर दैट यू हैव टू चेक इन एनी इंटरवल। अगर 0 किसी इंटरवल में होता ना तो मैं वहां चेक कर लेता, बट यहाँ 0 तो इंटरवल में है नहीं, तो लेट्स टेक इट 5, 5 प्लस 1 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 वॉट एवर इट इज स्क्वायर है तो पॉजिटिव, 5 प्लस 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, अगेन स्क्वायर है पॉजिटिव, तो फाइनली वी आर गेटिंग प्लस ऑन दिस साइड। नाउ वी नो दैट 4 पे सर्कल है, मतलब वो इवन नंबर ऑफ टाइम है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस विल रिमेन प्लस। अगेन 3 इज स्क्वायर, इवन साइड इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगेन प्लस। 0 ऑड नंबर ऑफ टाइम है, साइन चेंज होगा माइनस, -1 ऑड नंबर ऑफ टाइम है, साइन चेंज होगा प्लस, सिमिलरली यहाँ पे माइनस।
तो जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम है वहाँ साइन चेंज नहीं करना है, जो रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है वहीं साइन चेंज करना है। तो लेस देन 0 की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज द आंसर। तो दिस वाज योर एक्चुअल रूल which I will ask you to avoid. Start finding, practice finding the sign in every individual interval. Okay, now let's do some more examples. 1 upon x plus 1 is greater than equal greater than only, I will say greater than x plus 2. So what we can do is we can cross multiply and I will get x plus 1 into x plus 2. अब नंबर लाइन बनाएंगे तो -1 और -2 आएगा, प्लस माइनस लगा के देख लेंगे, बट इट इज ऑल रॉन्ग राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इन द फर्स्ट आई टोल्ड यू कि कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में तो इट्स साइन में चेंज डिपेंडिंग ऑन कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये x प्लस 1 जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इफ दिस x प्लस 1 इज पॉजिटिव तब तो मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं था, तब तो ये सही होता, लेकिन x प्लस 1 नेगेटिव भी हो सकता है, सो वी कैन नॉट डू दिस स्टेप। सो व्हाट वी डू इंस्टेड, we do like this कि x plus 2 को लेफ्ट साइड ले आने का, like this। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज नहीं होता है, तो बोथ साइड वी सब्ट्रैक्ट x plus 2। now I will take LCM। LCM will give you 1 minus x plus 1 into x plus 2 करोगे तो x square plus 3x plus 2 आएगा। Now this will give you minus x square minus 3x minus 1 upon x plus 1 greater than 0. Now some people multiply the whole equation by -1 to remove this minus sign. Inequality will change, or you can go on like this also. But सारे minus हैं तो it is okay that we multiply the whole equation by -1 and inequality का sign will change. अब इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स निकालोगे तो आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज -3 माइनस रूट 5/2 -3 प्लस रूट 5/2 एंड डिनोमिनेटर से -1। अब ये -1 कहाँ होगा, ये -3 प्लस माइनस रूट 5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.24 अगर ले लेते हैं तो व्हाट आई विल गेट इज -1.5 प्लस माइनस 1.12 मतलब -2.62 एंड -0.38। तो बोलो -1 कहाँ आएगा, -1 आएगा इन दोनों के बीच में। सो लेट मी राइट दिस अगेन, approximate value I will write, so this is -0.38 -1 -2.62। अब नंबर्स लेते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन यू रिमेंबर। अगर फैक्टर में करना चाहते हो तो फैक्टराइज भी कर सकते हो, और सीधा रखना चाहते हो तो ऐसे भी रखो। सिंपल रूट्स होते तो फैक्टराइजेशन अच्छा दिखता, इतने गंदे से रूट है तो फैक्टराइजेशन इज ओके। -0.38 से बड़ा कोई नंबर बताओ, लेट्स टेक 0। अगर 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में आएगा 1 दैट इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में आएगा 1 दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या नंबर लेंगे, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं -0.5। -0.5 का स्क्वायर -0.25 -1.5 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में आएगा 0.5 दैट इज पॉजिटिव। ध्यान से इसको स्लो करके पॉज करके देख लो। यहाँ पे देखोगे तो मैं -2 ले लेता हूँ, -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 -6 प्लस 1 अगेन नेगेटिव, तो न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो नेगेटिव, -2 प्लस 1 दैट इज -1।
-2.6 से छोटा -3 ले लेते हैं। -3 पे स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, -9 + 1 दैट इज पॉजिटिव, और -3 + 1 इज नेगेटिव. So finally you see what signs we are getting. We are getting plus here. We are getting minus here. Sorry. Yes. We are getting minus here. Then we are getting plus, and then we are getting minus. So what we actually need? We actually need less than 0, or less than 0 hai, so this would be the answer. So this is how we solve questions of algebraic inequality using wavy curve method. Let's do one more example. X plus 1 power 100, x minus 2 power 25, 3 minus x power 15 is greater than 0. Now what? Same story, nothing new. पहले का रूट -1 100 टाइम्स, सेकेंड का रूट 2 है 25 टाइम्स, और डिनोमिनेटर से रूट है 3 15 टाइम्स. साइन के लिए कोई भी एक नंबर पिक कर सकते हैं, तो प्रेफरेबली पिक 0, जो कि यहाँ आएगा. 0 पे देखोगे तो x plus 1 power 100 विल बी पॉजिटिव, x minus 2 power 25 इज -2 का पावर 25 नेगेटिव, एंड 3 minus 0 3 का पावर 15 इज प्लस. तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज माइनस. अब राइट में जाते हैं. राइट में जाओगे तो 25 टाइम्स रूट है, मतलब ऑड नंबर ऑफ रूट्स है, मतलब साइन चेंज होगा. अगेन 15 टाइम्स रूट है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रूट है, मतलब साइन चेंज होगा. लेफ्ट में आएंगे तो 100 टाइम्स रूट है, मतलब इवन टाइम रूट है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, मतलब माइनस रिमेन्स माइनस. सो व्हाट इज द आंसर? वी नीड ग्रेटर दैन 0 एंड दैट विल गिव यू 2 से 3. So this is a kind of inequality we were talking about. अब इसमें एक ट्विस्ट आता है. ट्विस्ट ये है कि अगर इक्वालिटी आ गया तो क्या होगा. तो लेट मी गो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. अगर इक्वालिटी आ जाएगा तो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इस तरह की चीजें और ऐड हो जाएंगी. तो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन. अगर यहाँ पे मैं इक्वलिटी लिखता हूँ तो यहाँ इक्वल आएगा, यहाँ इक्वल आएगा, तो 1 इज इंक्लूडिंग, सो 1 पे क्लोज इंटरवल लग जाएगा. सेकंड में ऑलरेडी इक्वलिटी है. यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखना, अगर मैं यहाँ इक्वलिटी लगा देता हूँ तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है. द ओनली थिंग इज गोइंग टू चेंज इज जो भी जीरोज हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, जो भी पोल्स है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. सो इन दिस क्वेश्चन ये 1 और -5/2 दोनों रूट्स हैं, जीरोज हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. 1 ऐड करने के लिए 1 पे क्लोज कर दिया, -5/2 ऐड करने के लिए -5/2 पे क्लोज कर दिया. नो दिस क्वेश्चन. यहाँ पे अगर मैं इक्वलिटी डालता हूँ तो क्या होगा? ये 1, 3 और -5 ऑल आर रूट्स, क्योंकि न्यूमरेटर से आए हैं, तो 1 पे भी क्लोज होगा, 3 पे भी क्लोज हो जाएगा, और -5 पे भी क्लोज हो जाएगा. दैट्स इट. इतना ही करना है. थोड़ा आगे चेंज आएगा देखना. यहाँ पे देखना -1 +1 एंड 15 सारे रूट्स हैं, जीरोज हैं, न्यूमरेटर से आए हैं, तो अगर इक्वल करोगे तो यहाँ पे -1 पे क्लोज, 1 पे क्लोज एंड 15 पे क्लोज. ऑलवेज रिमेंबर इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी आर ऑलवेज ओपन. यहाँ देखना फिर से सारे रूट्स हैं तो सब क्लोज हो जाएंगे. -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी विल रिमेन एज इट इज. अगर यहाँ इक्वल किया तो यहाँ इक्वल किया तो ये क्लोज हो जाएगा. एंड ये पार्ट देख लो, ये 1 तो रह गया, क्योंकि इक्वालिटी में बाउंड्रीज आएंगे, तो यूनियन में ये 1 हमें सेपरेट अलग से लिखना पड़ेगा. दिस इज द आइडिया. कुछ लोग कहते हैं x - 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हटा दो. नहीं, हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव होता है. दोनों में डिफरेंस क्या है?
पॉजिटिव में 0 नहीं आता है, जबकि नॉन नेगेटिव में 0 आता है। तो अगर 0 की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट्स वाई आई राइट ऑल दिस एंड देन ऐड द रूट्स, सब्ट्रैक्ट द पोल्स। चलो देखो यहाँ पे कौन कौन से रूट्स है, कौन कौन से पोल्स हैं। रूट्स में देखोगे तो -1 और 2 है, पोल्स देखोगे तो 0 है, डिनोमिनेटर से 0 है। तो -1 पे क्लोज, 2 पे क्लोज, 0 पे इट विल रिमेन ओपन। रूट्स को इंक्लूड करने का, पोल्स को एक्सक्लूड करने का। बोलो रूट्स। रूट्स आएंगे -1 एंड 5 और पोल्स आएंगे 3। दैट्स इट। तो आंसर जो हमने, अच्छा आंसर लिखा नहीं है तो लेट्स राइट आंसर ऑफ इक्वालिटी। -1 रूट था, इंक्लूड किया, 3 पोल था, एक्सक्लूड किया, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी था, 5 रूट था तो इंक्लूड कर ले। रूट्स इंक्लूड, पोल्स एक्सक्लूड। यहाँ देखो पहले तो मैं आंसर लिखता हूँ। आंसर इज, जब सिंपल लेस देन 0 में, -∞ to -5 union -1 to 0. This is the answer if only inequality is there. Now if I add equality also, then we add the roots. Roots are -1 and 3 and poles are -5, 0 and 4. तो -1 को ऐड करना है, देखो मैंने ओपन को क्लोज कर दिया। 3 को इंक्लूड करना है, 3 अपने इंटरवल में कहीं है नहीं तो उसको यूनियन में सिंगल नंबर के लिए करली ब्रैकेट। -5 हटाना है, -5 देखो ऑलरेडी हटा हुआ है। 0 हटाना है, ऑलरेडी देखो नॉट इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल। 4 भी हटाना है, 4 ऑलरेडी इंटरवल में हमने नहीं लिया हुआ। अगर लिया होता तो माइनस करके हटाना पड़ता। देन दिस क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या आया है, -2.62 से -∞ यूनियन -1 to -0.3। अब अगर यहाँ पे हमने इक्वलिटी ऐड कर दिया तो इसके रूट्स कौन कौन से हैं, ये गंदे वाले नंबर्स, उनको हमने ऐड कर दिया। और पोल कौन सा है, -1, वो ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग ही है। तो जब ओपन इंटरवल लिखते हैं तो सब एक्सक्लूडिंग ही होता है, तो सिर्फ आपको जो रूट्स है वो ऐड करना है। पोल्स को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें होता नहीं है, बट फिर भी चेक कर लेने का। नाउ इन दिस क्वेश्चन आंसर इज व्हाट, पॉजिटिव हमें चाहिए तो 2 से 3 वुड बी द आंसर। लेकिन अगर इक्वालिटी डाल दोगे तो रूट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। रूट्स कौन से हैं, -1 और 2। पोल्स कौन से हैं, 3। तो -1 है, हमने इंक्लूड किया हुआ है, नो। 2 से 3 में -1 नहीं होता है तो यूनियन में -1 करो। 2 इंक्लूड किया हुआ है, नहीं, लो 2 इंक्लूड कर दिया। 3 को एक्सक्लूड करना है, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व वेवी कर्व मेथड। तो नाउ विल डू सम मोर एग्जांपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी, सिंपल है, नंबर लाइन बनाएंगे। एवरी रूट्स वी विल फाइंड, एवरी पोल्स वी विल फाइंड। तो रूट अगर देखेंगे तो ऊपर 5 एंड 9 रूट है, पोल्स 3 एंड 7 है। अब मैं कुछ और चीज़ें चेंज करूँगा, धीरे धीरे रिफाइननेस आएगी। 3 और 7 पोल है, पोल पे विल मेक राउंड सर्कल, बेसिकली सर्कल, वी कॉल इट होल एक्चुअली, सो दैट इन फ्यूचर वी विल नो कि दीज पॉइंट्स आर नेवर टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि रूट्स इंक्लूड होते हैं इक्वलिटी अगर हो तो। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में इक्वलिटी डाल रखी है टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं है तब तो सारे ओपन इंटरवल लिख दो, डजंट मेक मच एफर्ट, बट इक्वालिटी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो आगे से जितने भी पोल्स आएंगे, मतलब जहां डिनोमिनेटर 0 है उसमें ये सर्कल बना देंगे, सो दैट वी विल नो। अब साइन की बात करें तो 0 पे क्या आएगा, 0 पे माइनस 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 माइनस, ये भी माइनस, -5, -9, -3, -7, ऑल माइनस विल गिव यू प्लस। और 0 कहाँ आता है, 3 के पहले, तो यहाँ प्लस आएगा। नाउ ऑल द रूट्स आर अकरिंग एग्जैक्टली वंस, इसका मतलब ऑल द रूट्स आर अकरिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो साइन विल कीप ऑन चेंजिंग।
and that is how we proceed. Now less than equal to 0 है, तो ये हो गया लेस देन. अगर सिर्फ लेस देन होता तो आंसर आता 327 यूनियन 529. लेकिन अगर इक्वालिटी भी है तो क्या होगा, रूट्स विल बी इंक्लूडेड, पोल्स विल बी एक्सक्लूडेड. तो रूट्स क्या है, 5 और 9, तो 5 और 9 को इंक्लूड कर दो. 3 एंड 7 विल बी एक्सक्लूडेड. देखो ऑलरेडी वो एक्सक्लूडिंग ही हैं बिकॉज ओपन इंटरवल में दे आर नॉट इंक्लूडेड. So this was this question. Now I'm going to clear this. If you want, you can rewind and watch it again. Next question. Next question I am taking this one. So first condition क्या था, एक साइड तो जीरो ही होना चाहिए, तो सब कुछ एक साइड लाएंगे तो मिलेगा x प्लस 3 ग्रेटर देन 0. इसको भी नंबर लाइन से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, रूट निकालोगे तो -3 आएगा. अब -3 से बड़ा नंबर अगर लेना है तो दैट विल टेक 0. वी कैन टेक 0 + 3 इज पॉजिटिव. सिंगल रूट है तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव. हमें पॉजिटिव चाहिए तो आंसर आया x इज बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी. डायरेक्टली भी लिख सकते थे x इज ग्रेटर देन -3. तो सिंगल डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. ना आई विल बी सॉल्विंग थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देखें आप लोग, उसके रूट्स वगैरह फाइंड करो, क्या आएंगे रूट्स. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में वापस से देखो, एक साइड जीरो नहीं है तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4x - 2 is greater than 3x - 1, that will give you x -1 greater than 0. फिर से सिंगल डिग्री का इक्वेशन है तो सीधा सीधा x is greater than 1, और you can write x belongs to 1 to infinity. Again let me clean this up. Now I'm going to solve this question. दोनों साइड वापस से x है, एक साइड जीरो करना पड़ेगा, तो let me take this -4x². Now one way to solve this is x - 1 whole square का फॉर्मूला लगा दो. And second way which I will prefer you to use, that this is 2x का स्क्वायर है. 2x का स्क्वायर अगर है तो what you see is a² - b², और a² - b² क्या होता है, a plus b into a minus b. That will give you 3x - 1 into minus x minus 1. x minus 2x will be minus x. Now एक साइड जीरो हो गया, लेफ्ट साइड में फैक्टर्स आ गए, रूट्स फाइंड करेंगे. तो एक रूट आएगा 1/3 एंड सेकेंड रूट विल बी -1. चलो ओके, अब साइन देखते हैं. जीरो पे क्या आएगा, जीरो पे आएगा -1 into -1 दैट इज +1. जीरो कहाँ आएगा, -1 और 1/3 के बीच में, तो यहाँ हो गया प्लस. नाउ -1 भी सिंगल टाइम है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स. 1/3 भी वंस है, ऑड नंबर ऑफ टाइम. साइन चेंज होगा प्लस से माइनस, प्लस से माइनस. हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन यहाँ है, तो -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी. ये हो गया लेस देन के लिए. हमेशा पहले हम ओपन इंटरवल्स लिखेंगे, दैट इज फॉर इनइक्वालिटी. अगर इक्वालिटी है तो वी विल इंक्लूड द रूट्स. रूट्स क्या है इसमें, -1 और 3 दोनों रूट्स हैं, तो -1 को इंक्लूड कर दिया और 1/3 को इंक्लूड कर लिया. You must know the meaning of open interval and closed interval, then only you will be able to manage. Again I am going to clean this. Now you will try this question. ये क्वेश्चन ट्राई करें सभी लोग. You can pause the video and solve. Okay, so here what we get is, न्यूमरेटर में देखोगे तो पहले तो x² कॉमन आ जाएगा. कॉमन तो कहीं भी कुछ हो,
कर लेना चाहिए हमेशा। डिनोमिनेटर इज सिंपल, इसके रूट्स निकालें न्यूमरेटर के। न्यूमरेटर के रूट्स आएंगे 1 और 2। यू कैन फाइंड इट विद डी मेथड, नॉर्मल रूट वाला जो मेथड है, या फिर क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताऊंगा। इफ यू सी द वीडियो, फर्स्ट वीडियो, यू विल सी कि ऐसे इक्वेशंस का रूट विद इन अ सेकेंड कैसे फाइंड करते हैं। डिनोमिनेटर का नहीं मिलेगा, जो मेथड है उससे सिर्फ न्यूमरेटर का ही रूट मिलेगा, बट दैट इज इनफ एक्चुअली। तो इसके रूट्स आएंगे 1 एंड 2। तो फैक्टर हो गया x माइनस 1, x माइनस 2। बता देता हूं मैं, किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 है, जैसा कि ऊपर वाले क्वाड्रेटिक में है 1 माइनस 3 एंड 2, अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 है तो वन रूट विल बी 1 एंड सेकेंड रूट विल बी c by a। तो यू कैन यूज दिस इन एनी इक्वेशन। डिनोमिनेटर में रूट्स निकालोगे तो आएगा 6 एंड माइनस 5, 6 एंड माइनस 5, तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस 6 एंड x प्लस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नाउ ड्रॉ। 0 ट्वाइस आएगा, x स्क्वायर है, 2 बार रूट आएगा। x माइनस 1 किया तो 1 एक बार, 2 एक बार, 6 पोल है तो सर्कल बना दिया, माइनस 5 पोल है तो एक सर्कल बना दिया। नाउ साइन देखते हैं, 0 पे चेक करते हैं, लेकिन 0 ऑलरेडी रूट पे है, बाउंड्री पे है, तो कोई और नंबर ले लेते हैं। 1 लेते, 1 भी बाउंड्री है, 2 भी बाउंड्री है, 3 ले लेते हैं। तो 3 पे वैल्यू क्या मिलेगा? 3 पे आएगा वैल्यू 9, मतलब पॉजिटिव। 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 6 नेगेटिव, 3 प्लस 5 पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। तो 3 कहाँ है? यहाँ पे आएगा, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। नाउ ऑल द रूट्स एक्सेप्ट 0 इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो साइन चेंज किया। 2 भी सिंगल है तो साइन चेंज किया, 1 भी सिंगल आया था, साइन चेंज किया। 0 2 बार आया है, साइन चेंज नहीं होगा। माइनस 5 सिंगल था, साइन चेंज होगा। थिंक अबाउट इट। एंड नाउ व्हाट वी नीड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ग्रेटर दैन की बात करेंगे तो ये पोर्शन आया। आंसर विल बी, आप खुद से आंसर लिखो इसका, एंड देन यू विल सी कि एक्चुअली योर आंसर इज मोस्ट ऑफ द केसेस में रॉन्ग होगा। सो पॉज एंड राइट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5, यूनियन 1 टू 2, यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ये हुआ अगर सिर्फ ग्रेटर दैन होता तो। इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी भी है तो मुझे 0, 1 एंड 2 को इंक्लूड करना है, और माइनस 5 और 6 को एक्सक्लूड करना है, बिकॉज दैट इज द डिनोमिनेटर, मतलब पोल है। तो माइनस 5 एक्सक्लूड करना है, तो दिस इज ओके। 0 को इंक्लूड करना है, तो 0 कहाँ है? देयर इज नो 0, सो हमें ऐड करना पड़ेगा 0 को। 1 को इंक्लूड करना है, चलो भाई 1 हो गया। 2 को इंक्लूड करना है, चलो 2 हो गया। 6 को एक्सक्लूड करना है, ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग है। सो दिस शुड बी द आंसर। यूजुअली वी मिस दिस 0 को मिस कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखने का, every root should be included and after that every pole will be excluded. Now suppose एक क्वेश्चन है, उसमें कोई नंबर से अल्फा न्यूमरेटर में भी है रूट, डिनोमिनेटर का भी रूट है, मतलब पोल भी है। बोलो रखोगे या नहीं रखोगे? तो एक्चुअली वी विल नॉट कीप इट, क्योंकि पोल्स तो नहीं होने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। सो ऑलवेज फर्स्ट रूट्स को इंक्लूड करो एंड देन पोल्स को एक्सक्लूड करो। तो अगर कोई पोल रूट में भी होगा तो वो अपने आप एक्सक्लूड हो जाएगा। ओके, दिस वाज वन क्वेश्चन। नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू। सी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखो। इफ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक साइड 0 नहीं है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। एक साइड 0 नहीं है तो एक तरीका तो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बट दैट इज रॉन्ग आइडिया। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जब तक हमें पता नहीं हो कि वो नंबर एग्जैक्टली पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फिर व्हाट वी कैन डू इज
सबट्रैक्ट कर सकते हैं और ये ऐसा आ जाएगा. देन वी टेक एलसीएम. LCM will be x minus 1 into 2x minus 1. That will be 8x minus 4 minus x plus 1. That is 7x minus 3 upon x minus 1, 2x minus 1. Now this is simple question. So what we do, number line, root आया 3/7 once, pole आया 1, that will be circled. 1/2 is also pole. 1/2 कहाँ आएगा? 3/7 के पहले या बाद, तो 3/7 के बाद आएगा 1/2 एंड दैट इज ऑल्सो अ पोल. साइन की बात करते हैं, 0 ले लेते हैं. 0 पे आएगा -3 दैट इज नेगेटिव अपॉन -1 -3. ओवरऑल इट विल बी नेगेटिव. तो 0 कहाँ आने वाला है? 3/7 के पहले, तो यहाँ नेगेटिव हो गया. Now all the roots are odd number of times, so sign will keep on changing. Now अगर सिर्फ ग्रेटर दैन 0 होता तो आंसर आता 3/7 से 2 यूनियन 1 से इंफिनिटी. लेकिन अगर इक्वालिटी भी है तो रूट्स को इंक्लूड करेंगे, मतलब 3/7 इंक्लूड होगा और 1 और 1/2 एक्सक्लूड होंगे. वो ऑलरेडी देखो एक्सक्लूडेड ही है, ओपन इंटरवल है. So this is how we proceed these kind of questions. Next, we are going to solve this. So try this till I clear the screen. Okay. वापस सिंपल नंबर लाइन. एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस √5 माइनस √5. एक्स स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू आएगा 2 एंड -2. देख लो पोजीशनिंग कैसी है. और साथ में नीचे 1 आएगा, 1 यहाँ आएगा एंड दैट इज अ पोल, तो मैंने सर्कल बना दिया. अब 0 की बात करें तो 0 पे आएगा -0 -5, 0 -4 नेगेटिव, 0 -1 नेगेटिव, माइनस 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 इज माइनस और 0 यहाँ था तो यहाँ माइनस लगाया. ये ध्यान से देख लो, -2 और 1 के बीच में 0 आता है तो 0 पे देखा साइन माइनस है तो माइनस लगाया. नाउ एवरी रूट अकर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम, सिंगल बेसिकली, तो एवरीवेयर साइन विल चेंज, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस. व्हाट वी नीड इज लेस देन लिया तो ये पार्ट आया. सिर्फ लेस देन होता तो -∞ से -√5 यूनियन -2 से 1 यूनियन 2 से +√5. लेकिन इक्वालिटी भी है तो रूट्स मतलब प्लस -√5 प्लस -2 इंक्लूड होंगे और 1 एक्सक्लूड होगा, ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग है. तो दिस वुड बी द आंसर. नेक्स्ट, अगेन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज कि इसमें एक साइड 0 नहीं है तो 3/2x - 1 -5/x - 1. If we take LCM, this will be 2x - 1 into x - 1 and that is 3x - 3 minus 10x - 5. What we get is -7x plus 2 upon 2x minus 1 x minus 1 greater than equal to 0. I am solving these questions by directly putting plus minus, but still I advise you to use individual interval में point लेकर के value find करना. But simple questions हैं, fast करना है, तो this method is good, but only if you have a lot of practice and you do not miss the steps. तो numerator is what? 2/7. Denominator is 1/2 जो बाद में आएगा एंड सर्कल बनाएंगे, 1 जो और भी बाद में आएगा और वहां भी सर्कल बनाएंगे. 0 की बात करें तो 0 यहाँ आएगा, साइन देखते हैं. 0 + 2 इज पॉजिटिव, 0 - 1 is negative, 0 - 1 is negative, overall positive. So this will be plus. Now all the roots and poles are odd number of times, तो sign will change. हमें सिर्फ greater than 0 चाहिए होता
तो हमारा आंसर आता दिस एंड दिस, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2/7 यूनियन 1/2 से 1, लेकिन इक्वालिटी भी है तो 2/7 को इंक्लूड करेंगे और 1/2 और 1 को एक्सक्लूड करेंगे, वो ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं. ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आई विल नॉट गिव इट मच टाइम. I will directly solve it. So this would be number line. Roots are 1, -5, 0 and -2. साइन देखेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. इक्वलिटी है तो -2 और 0 जो है वो एक्सक्लूडिंग होगा और बाकी सारे इंक्लूडिंग हो गए. एंड नेक्स्ट टू क्वेश्चन, यू सॉल्व योर ओन, कॉपी इट एंड सॉल्व योर ओन these questions. Again very simple, x minus 7 into x minus 15, its answer will be 7 to 15, and that's it. So this way we solve inequality of algebraic polynomial. After that we will do another video also in which I will include many kind of inequality, that includes trigonometrical inequality, logarithmic inequality, exponential. In general, inequality is always solved by drawing the boundary. एक बार बाउंड्री ड्रॉ किया फिर हर बाउंड्री में जाकर के 1 by 1 चेक करेंगे. You will see over the period of time that every single inequality is solved by this only. If you have x plus y plus 2 greater than 0 and x square plus y square less than 9, this is also solved by the same method. बाउंड्री बनाएंगे, हर पार्ट में हर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा जो भी पार्ट है वहां चेक करेंगे. mod z less than 3, argument of z plus 1 upon z minus 1 greater than pi by 6. कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस है, आर्गुमेंट है, बट इनइक्वालिटी है, तो वी यूज द सेम टेक्निक. व्हाट? ड्रॉ द बाउंड्री बाय मेकिंग इट इक्वल. देन एवरी पार्ट, हर पार्ट में अलग अलग इंडिविजुअल पॉइंट लेकर के वी विल चेक. सो वी विल डू समटाइम्स लेटर. थैंक यू. दिस वाज योर वेवी कर्व मेथड.